So let's start the session. I welcome you all to Unacademy Plus to this special class. This is a special class that we are conducting on the important viceroys in India. ये जो क्लास है इसमें हम important viceroys in India को पढ़ेंगे जो बहुत important viceroys रहे हैं and the most important work that they have done in India that we are going to study. So today's class is going to be really special. आज की क्लास सच में बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की क्लास हम प्रीलिम्स को मद्देनज़र रखते हुए ले रहे हैं. Today's class we are going to focus on prelims and at the end of the class we are going to solve some 6 to 7 questions also. क्लास के एंड में हम कुछ 6 से 7 questions भी सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो आई होप यू ऑल आर रेडी विद द सेशन. उम्मीद करती हूँ कि आप लोग रेडी हो एंड आई ऑल्सो होप दैट यू आर हैविंग योर नोट्स एंड रजिस्टर्स एवरीथिंग टू मेक रनिंग नोट्स इन द क्लास. ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों के पास आपके नोट्स वगैरह सब होंगे, रजिस्टर्स, पेन, पेंसिल सब रेडी होंगे नोट्स बनाने के लिए. ठीक है, ओके, एवरीवन इज़ रेडी, सभी लोग रेडी है, ऑल सेट. ओके, सो वील वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स फॉर द अदर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन द सेशन. तो आज की क्लास को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्लास के एंड में जो टेस्ट होने वाला है उसमें आपका देखा जाएगा अटेंशन लेवल कितना स्ट्रॉन्ग था. एट द एंड ऑफ द क्लास द टेस्ट दैट आई एम गोइंग टू टेक will determine how attentive you all were in the class. Okay, so before we start the session, here's a small announcement for all of you. Session start करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी announcement है. As you all know that current affairs is very important when it comes to prelims. जब prelims की बात आती है तो current affairs काफ़ी important हो जाते हैं. And for that, Unacademy has launched a very important initiative, the T20 Daily Current Affairs Test Series for the month of December. Now these are free test series. ये जो test series है ना ये बिल्कुल free of cost है. ठीक है, and why T20 test series? Because see, every day at 7:30 p.m. sharp you will be given free test series on the daily current affairs, 20 questions. That is why T20. So daily practice test of current affairs will help you to strengthen up your current affairs. It will help you to boost up your current affairs. It will be both in both languages, that is Hindi language also and English language also. And there will be 20 questions, 20 minutes time will be given to you, 40 marks का test होगा, detailed test analysis solution will also be provided. And you can enroll in this test series Unacademy learning app or visit Unacademy website. Then you have to go sign in or you have to register yourself on Unacademy's learning app. Then click on the see all button, enroll in the test series for free, and when prompted you have to use this referral code ARPITA10. जब स्क्रीन पे आएगा ना कि अनलॉक करने के लिए आपको कोड यूज़ करना है, फ्री टेस्ट ओपन करने के लिए यू हैव टू यूज़ द कोड, सो दैट विल बी ARPITA10. यूज़ दिस कोड टू अनलॉक द फ्री प्लस एक्सपीरियंस ऑन Unacademy Plus. Okay, so this was a very crucial announcement for all of you. The link is also given below in the description box and the class PDF of today's session will be uploaded on my Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. तो उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है. सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज ये टेलीग्राम चैनल का नाम है जिसको ज्वाइन करके आपको क्लास के पीडीएफ्स मिल जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ बिफोर वी स्टार्ट द सेशन आई एम गोइंग टू थ्रो अ स्मॉल लाइट ओवर फ्यू टॉपिक्स एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग रनिंग नोट्स विद मी साइमल्टेनियसली इन द क्लास. तो क्लास शुरू करने से पहले ना 3 टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं. देयर आर 3 टॉपिक्स दैट वी नीड टू स्टडी बिफोर वी स्टार्ट द सेशन. सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. ओके, दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सब्सिडियरी अलायंस की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज इट? इट इज़ बेसिकली अ ट्रीटी. सब्सिडियरी अलायंस इट्स बेसिकली अ ट्रीटी. एंड ट्रीटी बिटवीन हु? अब किसके बीच की ट्रीटी है ये? सो इट्स अ ट्रीटी बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बीच की ट्रीटी है. इंडियन प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, इट्स अ ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स. नाउ बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रीटी व्हाट डिड द ब्रिटिशर्स डू? ब्रिटिशर्स ने इस ट्रीटी की मदद से किया क्या, ये समझते हैं. सो द ब्रिटिशर्स बाय द वर्च्यू ऑफ दिस ट्रीटी व्हाट दे डिड, दे took hold over the you can say territories of the princely states. So when we talk about subsidiary alliance, जब हम बात करते हैं subsidiary alliance की, it's a treaty between British East India Company and Indian princely states.
नाउ राइट इट डाउन बाय वर्च्यू ऑफ विच, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स क्योंकि ये प्रीलिम्स में काफ़ी बार पूछा गया है, इट हैज़ बीन आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन प्रीलिम्स. सो राइट इट डाउन बाय वर्च्यू ऑफ विच the Indian kingdoms they lost their territories or the rights over their territories, or you can write sovereignty to the English. इस ट्रीटी के तहत हुआ क्या कि इंग्लिश ब्रिटिशर्स के आगे वो अपनी टेरिटरीज को, अपने हक को, अपने रूल को खो बैठते हैं. ठीक है. नाउ दिस सब्सिडरी अलायंस इज कंसिडर्ड टू बी द मेजर प्रोसेस दैट लेड टू द बिल्डिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. So this is again important for prelims. It led to the building of, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो मेक श्योर कि स्टेटमेंट्स आप नोट डाउन कर रहे हो. सो इट लेड टू द बिल्डिंग ऑफ, राइट इट डाउन, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, because through this treaty only indirectly they were grabbing hold of they were snatching away the territories of Indian rulers. ठीक है. एंड दिस ट्रीटी वॉज फ्रेम्ड बाय, किसने इसको फ्रेम किया था, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट वॉज फ्रेम्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ले. ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ले का दिमाग का आइडिया था ये, हु वॉज द गवर्नर जनरल फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1798 to 1805. So his idea was to snatch away the territories of Indian rulers indirectly in the disguise of subsidiary alliance. They termed it an alliance. इसको इन्होंने alliance term दिया. ठीक है, ये बताने की कोशिश की कि ये तो हमारी दोस्ती है, हम तो ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू इंडल्ज इनटू ग्रुपिज्म विद द इंडियन रूलर्स. इट्स अ काइंड ऑफ friendly gesture, but indirectly it was the mind game of Lord Wellesley to capture the territories of Indian rulers. ठीक है. एंड हु वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ दिस अलायंस, पहले विक्टिम कौन बने इसके, नवाब ऑफ अवध. He was the first victim of this alliance. He was the first ruler who entered into this treaty. अपनी तरफ से जब आग में कूदता है इंसान, ठीक है, तो वो खुद भी जलता है, उसके घर वाले भी जलते हैं. नवाब ऑफ अवध ने वही किया, अवध के साथ साथ खुद को भी इस आग में झोंक दिया. ठीक है, पॉइंट क्लियर? प्लीज लेट मी नो इफ दिस मच इज क्लियर. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. अब समझते हैं इस अलायंस के फीचर्स क्या थे फॉर प्रीलिम्स. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वर द फीचर्स ऑफ दिस अलायंस. सो व्हेन वी लुक एट द फीचर्स ऑफ दिस अलायंस, द फर्स्ट फीचर वाज दैट इट वाज प्लान्ड बाय द मास्टरमाइंड. इट वाज प्लान्ड बाय द मास्टरमाइंड दैट वाज लॉर्ड वेलेस्ले. ये लॉर्ड वेलेस्ले के दिमाग का आइडिया था. ठीक है, बट दिस टर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच गवर्नर डुप्ले. ठीक है, इट वॉज प्लान्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ले, बट दिस टर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये जो टर्म था, टर्म मीन्स सब्सिडरी अलायंस, ये जो शब्द था इसका इस्तेमाल किसने करने की कोशिश की थी, सबसे पहले फ्रेंच गवर्नर जनरल डुप्ले ने. ठीक है, और इस आइडिया को चुराया किसने, ब्रिटिशर्स ने. सो ब्रिटिशर्स आपको पता ही है कि छीनने की, झपटने की, चुराने की बड़ी इनको आदत थी. तो ये टर्म जो इंट्रोड्यूस किया, द टर्म विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच गवर्नर जनरल, इट वॉज अगेन स्नैच्ड अवे बाय Britishers and implemented in India. So this is again important for prelims. The term was introduced by, write it down, इसको लिख लो, it was introduced by French Governor General Duplé. Okay, X is silent, it is Duplé. ठीक है. अब second feature, what was it? That an Indian ruler, write it down, an Indian ruler entering into subsidiary alliance. SA means subsidiary alliance. So an Indian ruler who entered into subsidiary alliance with the British had to dissolve his own army. ठीक है, तो कोई भी इंडियन रूलर जो कि सब्सिडरी अलायंस में एंटर कर रहा है, ठीक है, उसको क्या करना होगा, उसको अपनी खुद की आर्मी को डिसबैंड करना होगा. ठीक है, डिसॉल्व करना होगा. सो इफ यू आर एन इंडियन रूलर, यू आर एंटरिंग इनटू सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिशर्स, देन यू हैव टू डिसॉल्व योर आर्म्ड फोर्सेस, बिकॉज नाउ हुज आर्म्ड फोर्सेस विल बी डिप्लॉयड इन योर स्टेट, ब्रिटिशर्स. अब किसकी आर्मी आपके स्टेट में पहरा देगी, ब्रिटिशर्स की. तो एक मयान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती.
एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। तो ये मुहावरा यहाँ पर फिट बैठता है कि एक स्टेट पे या तो ब्रिटिशर रूल करेंगे या फिर रूलर करेगा, और रूलर आ रहा है सब्सिडरी अलायंस के अंदर, तो अब ब्रिटिशर से यहाँ पर इनडायरेक्टली अपनी आर्मी को तैनात करेंगे। सो द इंडियन रूलर हैड टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश फोर्सेस, द फोर्सेस ऑफ ब्रिटिश इन हिज टेरिटरी, अपने टेरिटरी में ब्रिटिश फोर्सेस को वो डिप्लॉय करेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। तो द थर्ड पॉइंट वाज दैट द इंडियन रूलर हैड आल्सो टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी। सो ब्रिटिश आर्मी की ये तो वही बात हो गई, ठीक है, कि आप सर पे भी चढ़ रहे हो, सब्सिडी अलायंस के नाम पे दोस्ती करने की कोशिश भी कर रहे हो और पैसे भी हम ही से ले रहे हो। ठीक है, सो दे वर डिप्लॉइंग देयर आर्म्ड फोर्सेज इन आवर टेरिटरीज, प्लस दे वर टेकिंग मेंटेनेंस फी ऑल्सो फ्रॉम अस, दे वर नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग फ्रॉम देयर पॉकेट्स। अपनी पॉकेट से तो वो कुछ भी स्पेंड नहीं कर रहे थे, कोई भी खर्चा नहीं कर रहे थे, सारा खर्चा हमारा, टेरिटरी भी हमारी, खर्चा भी हमारा। द टेरिटरी वॉज ऑल्सो आर्स, द एक्सपेंस वॉज ऑल्सो आर्स। ठीक है, सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नाउ इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओनली देर वॉज, यू कैन से, अ लूप होल। इसी पॉइंट में नवाब को समझ जाना चाहिए था, इंडियन रूलर्स को समझ जाना चाहिए था कि प्रॉब्लमैटिक पॉइंट है, बट द इंडियन रूलर्स डिड नॉट अंडरस्टैंड। व्हाट वाज द लूप होल? That if the Indian ruler failed to make the payment, then a portion of his territory would be taken away and ceded to the Britishers. तो होगा क्या कि उसकी टेरिटरी का जो पोर्शन होगा, हिस्सा होगा, वो किसके पास जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। ठीक है, सो इफ द इंडियन रूलर फेल्स टू पे द मनी, ठीक है, इफ द इंडियन रूलर फेल्स टू पे द मेंटेनेंस, देन पोर्शन ऑफ हिज टेरिटरी विल फॉल अंडर द क्लचेस ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स उसकी टेरिटरी को जब्त कर लेंगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हेन द इंडियन रूलर न्यू अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सब्सिडरी अलायंस, देन व्हाई डिड दे एंटर? बिकॉज ऑफ वीक एडमिनिस्ट्रेशन, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी। खुद में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कुछ रूलर्स की कि वो अपने आप को एनिमी से प्रोटेक्ट कर सकें, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स से हेल्प ली और सब्सिडरी अलायंस में कूद गए। बिकॉज सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स वर नॉट वेरी efficient, they knew that they cannot withstand the enemy forces, so they took the help of Britishers. And some of the rulers, they thought that subsidiary alliance is kind of a friendly gesture from the Britishers, and they thought that we will be able to pay the maintenance amount. हम इतने गरीब थोड़ी हैं, हम मेंटेनेंस अमाउंट दे देंगे, कम से कम हमें एक यूरोपियन आर्मी की हेल्प तो मिलेगी, यूरोपियन आर्मी की सपोर्ट तो मिलेगी। दे ऑल्सो एंटर्ड। उन्हें क्या पता था बाद में ये पे बढ़ जाएगा, उन्हें क्या पता था बाद में गलत आरोप लगा के ब्रिटिशर्स टेरिटरी को छीन लेंगे। दे डिडंट हैव एनी आइडिया दैट ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू प्लान एंड प्लॉट अगेंस्ट देम इन द फ्यूचर। सो सम ऑफ द रूलर्स दे फेल इनटू द ट्रैप ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है, अननोइंगली। सम ऑफ द रूलर्स वर सो वीक दैट नोइंगली दे एंटर्ड इनटू दिस ट्रैप, ठीक है। तो कुछ लोग तो बिना जाने बूझे घुस गए, ठीक है, भोले भाले थे, कुछ लोग खुद कमजोर थे तो इसलिए घुस गए इस ट्रैप में, इस जाल में। सो यू कैन से दैट at that time the administration was not very strong. If the administration would have been strong, this kind of treaty would not have taken place in India. अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही स्ट्रांग होता तो किसी की मजाल थी कि सब्सिडरी अलायंस जैसा टर्म ले भी आए। समझ आ रही है बात? सो एट दैट टाइम द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट स्ट्रांग, द आर्मी वॉज नॉट ट्रेन्ड, ठीक है, मैनेजमेंट वॉज नॉट एफिशिएंट। ओके, the next important feature है that in return the Britishers also said, in return the British would protect the Indian state, against any foreign attack. तो उन्होंने कहा कि किसी भी फॉरेन अटैक से पहले हम आपकी शील्ड बनकर खड़े हो जाएंगे टेरिटरी पर, ठीक है, or if there is any internal revolt then also we will help you, we will protect you. This was the promise given by the Britishers, ठीक है। So you can say that the Britishers, if they were taking maintenance fee from us, they were also giving us this promise that if in case there is any internal revolt in your state, there is any internal protest by the citizens of your state, we will help you. If in case any foreigner, any other state attacks you, we will protect you. This was the promise given by the Britishers. And the British also promised, next point is,
that the British, they also promised non-interference in internal affairs. उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि आपके आंतरिक मामलों में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे. वॉट एवर इंटरनल प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग, वॉट एवर इंटरनल डिस्कशंस यू आर हैविंग, वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर. यू जस्ट गिव अस मेंटेनेंस फी फॉर मेंटेनिंग आवर आर्मी. आप हमें आर्मी मेंटेन करने के लिए पैसे देते रहो टाइम टू टाइम. रेस्ट वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन योर इंटरनल अफेयर्स. ठीक है. बट दिस प्रॉमिस वॉज नॉट रेयरली केप्ट. ठीक है. पॉइंट क्लियर. दिस प्रॉमिस वॉज नॉट रेयरली केप्ट. इस प्रॉमिस को उन्होंने रखा ही नहीं. ठीक है. तोड़ नहीं, ब्रीच किया इस प्रॉमिस का. एवरी टाइम दे ब्रीच्ड दिस प्रॉमिस. एंड इंडियन स्टेट, अनदर पॉइंट वॉज, इसी के अंदर एक और पॉइंट था, दैट द इंडियन स्टेट इट कुड नॉट एंटर into any alliance with any other foreign power. ठीक है. तो ब्रिटिशर्स ने कहा ऐसा नहीं है कि आपने हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन किया है तो आप फ्रेंच के साथ भी इस तरीके का अलायंस में घुस सकते हो. नहीं. If you are befriending us, if you are joining subsidiary alliance with Britishers, then you are not allowed to join any other alliance with any other foreign power, whether Portuguese, whether French, whether Danes or Dutch, etc. आप किसी और foreign power के साथ इस तरीके का alliance join नहीं कर सकते. If you are with us, then you are with us. You are not allowed to go with any other foreign party. ठीक है. And also you cannot employ any other foreign national in your court. आप अपने सभा में किसी भी फॉरेन नेशनल को नहीं बिठा सकते. इफ अ पोर्टुगीज इज कमिंग टू योर कोर्ट, ही इज नॉट अलाउड. ही कैन कम, फ्यू आवर्स ही कैन स्पेंड विद यू एंड ही हैज टू गो. ही कैन नॉट रिमेन इन योर स्टेट. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. तो बेसिकली वो उनके इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिसी को भी हैंडल कर रहे थे. इनडायरेक्टली दे वर ट्राइंग टू हैंडल देयर इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिसीज ऑल्सो. ठीक है. वॉट वॉज द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग दीज टू कंडीशंस? द आइडिया वॉज टू कर्ब द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच. उस टाइम पर ब्रिटिशर्स की कॉम्पिटिशन में कौन था? फ्रेंच थे. एट दैट टाइम हु वॉज इन द कॉम्पिटिशन ऑफ ब्रिटिशर्स? दे वर फ्रेंच. सो टू कर्ब द इन्फ्लुएंस, टू रिमूव द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच, they devised these two features. Point clear? So you can say indirectly in subsidiary alliance के अंदर indirectly the Indian rulers, they had to take all the decisions with the approval of Britishers only. They cannot make any decision without the approval of Britishers. So their all the powers, their all political connections were controlled by the Britishers indirectly. You can say the Indian ruler, he virtually lost all his independence. अपनी सारी स्वतंत्रता खो बैठा एक इंडियन रूलर. ठीक है. एंड ही बिकेम अ ब्रिटिश, द इंडियन रूलर बिकेम ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट. ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बनकर रह गए इंडियन रूलर्स, वो जो कि ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्शन के अंडर हैं. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? तो जल्दी से बताएं. सो दिस वॉज द सब्सिडरी अलायंस. अब ये होता है आपका सब्सिडरी अलायंस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स. Now it was an annexation policy. Subsidiary alliance was a, subsidiary alliance क्या था? Treaty थी. ठीक है. Doctrine of lapse was annexation policy. So doctrine of lapse was direct annexation policy. Subsidiary alliance was indirect annexation policy. Am I clear? क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ? सभी को समझ आ रहा है? सब्सिडरी अलायंस इनडायरेक्ट पॉलिसी थी, एनेक्स करने की, ग्रैब करने की, छीनने की टेरिटरी को. और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो बिल्कुल शॉर्ट डायरेक्ट पॉलिसी थी कि भाई अब तो तुम्हारे मुंह पर कहकर तुम्हारा टेरिटरी छीनेंगे, तुम्हारे मुंह पर कहकर तुम्हारे स्टेट को ले लेंगे. ठीक है. सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एनेक्सेशन पॉलिसी, इट वॉज फॉलोड वाइडली बाय लॉर्ड डलहाउजी. किसकी पॉलिसी थी? किसका दिमाग था ये? लॉर्ड डलहाउजी का दिमाग था. ठीक है. हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856. 1848 से 1856 तक ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के. ठीक है. एंड इट वॉज यूज्ड एज एन, राइट इट डाउन, इट वॉज यूज्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी for extension of the British paramountcy और British control. ठीक है. तो ब्रिटिश कंट्रोल को एक्सपैंड करने के लिए
इस पॉलिसी का यूज़ किया. यू कैन से लॉर्ड डलहौजी वॉज एन एक्सपेंशनिस्ट इन नेचर, यानी कि ये यहाँ पर आए थे एक ही मुद्दे से कि हम ब्रिटिश एम्पायर को भारत में जितना फैला सकें उतना फैलाएंगे. ही केम टू इंडिया विद वन ऑब्जेक्टिव ओनली, whatever we are going to do we will do to expand the British rule. British rule को बढ़ाने के लिए जो हमसे बन पड़ेगा हम वो करने वाले हैं. whatever we can do we are going to do that. ठीक है. Now when we talk about doctrine of lapse, now it was the brainchild of Lord Dalhousie. Lord Dalhousie के दिमाग की उपज थी. What was the feature? That before the introduction of this doctrine, the princely states had a ritualized method of adoption practices which was in existence for centuries. ठीक है. तो होता क्या था कि इस पॉलिसी के आने से पहले, बिफोर दिस पॉलिसी केम, इफ दिस इज अ किंग ए, मान लो ये एक राजा ए है, सो हिज देर आर मेनी सन्स दैट ही हैज़. ठीक है, मान लो इनके बहुत सन है, तो जो एल्डर होगा ना उसको राजा बनाएंगे. द एल्डर वन विल बी द नेक्स्ट किंग, द एल्डर सन विल बी द नेक्स्ट किंग. इफ ही हैज़ ओनली वन सन, मान लो इसका सिर्फ एक ही बेटा है, ठीक है, देन दैट सन विल बिकम द किंग. ठीक है. एंड ही कैन ऑल्सो मेक और चूज द गर्ल चाइल्ड एज द फ्यूचर किंग. उसके पास ये भी ऑप्शन होता था कि गर्ल चाइल्ड को भी वो, अगर बेटी ही है सिर्फ तो उसको भी राजा बना सकते हैं, और सन इन लॉ, अगर बेटा नहीं है और दामाद है तो सन इन लॉ को राजा बना देंगे. दिस वॉज द रिचुअल विच वॉज गोइंग ऑन इन द किंगशिप. बट वेन डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स was introduced, the Britishers said that if a king has no son, मान लो एक राजा का कोई बेटा नहीं है, then his territory will fall under the clutches of the British government. इसकी जो टेरिटरी है पूरी की पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो जाएगी. If a king has no son but he adopts a son, मान लो बेटा नहीं है बट वो बेटे को अडॉप्ट कर लेता है. नाउ बिफोर डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, इफ अ किंग अडॉप्ट्स अ सन, दैट अडॉप्टेड सन कैन बिकम द नेक्स्ट किंग. पहले क्या होता था डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स से पहले कि अगर मान लो मैं राजा हूँ, मैंने एक बच्चा अडॉप्ट किया है, बेटा अडॉप्ट किया है, तो मेरा अडॉप्टेड बेटा राजा बन सकता है. बट नाउ द ब्रिटिशर्स सेड नो, यू नीड टू हैव अ बायोलॉजिकल सन, बायोलॉजिकल चाइल्ड. ठीक है, नॉट गर्ल चाइल्ड, मेल चाइल्ड. आपका बायोलॉजिकल, आपका खुद का बेटा होना चाहिए, खुद का खून होना चाहिए. इफ यू हैव अडॉप्टेड द सन, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट हिम. दिस थिंग हैपेंड इन झांसी. यही चीज़ तो झांसी में हुई थी. ठीक है, झांसी में क्या हुआ था कि जो बायोलॉजिकल बेटा था उसको एडमिट नहीं किया जा रहा था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था. दैट इज़ वाई झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने वॉर वेज कर दिया था. ठीक है. सो इफ द रूलर डाइड बिफोर अडॉप्टिंग अ सक्सेसर, देन वन ऑफ हिज विडोज कुड अडॉप्ट एन हेयर. दैट वाज बिफोर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. मान लो राजा की मौत हो जाती है, उसने अभी तक अपना कोई वारिस चुना नहीं है, तो जो विडो है, विधवा पत्नी है राजा की, अगर उसका कोई बेटा नहीं है तो वो अडॉप्ट कर सकती है बेटे को और उसको राजा बना सकती है. बट यहाँ पर वो प्रथा भी कैंसिल हो गई. आफ्टर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऑल द ओल्ड रिचुअल्स वर कैंसल्ड. नाउ अंडर दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एनी प्रिंसली स्टेट अंडर द डायरेक्ट और indirect control of East India Company, should the ruler not produce a legal male son, would be annexed by the company. कोई भी प्रिंसली स्टेट जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल में है, अगर उनका अपना बेटा नहीं है तो वो टेरिटरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेगी. ठीक है, पॉइंट क्लियर? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है तो जल्दी से बताएं. ठीक है. नाउ व्हाट वर द स्टेट्स विच वर अनेक्स्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? कौन से स्टेट्स थे? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ दी स्टेट्स. इन स्टेट्स की लिस्ट बना लीजिए. ठीक है. फर्स्ट वी हैड जैंतिया. जैंतिया वॉज एनेक्स्ड इन द ईयर 1803. दिस लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये ईयर की लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है. दे विल आस्क यू टू अरेंज द स्टेट्स विच वर एनेक्स्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्रोनोलॉजिकली. आपको ईयरली वाइज क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए बोलेंगे. देन जैंतिया के बाद आता है हमारा, वी हैव कोझिकोडे. ठीक है, कोझिकोडे was annexed in the year 1806. Then we had Guler. Guler was annexed in 1813. Then we have Kannauр. Kannauр was annexed in the year 1819, I guess. Yes, 1819. Then we had Kittur. फिर हमारे पास आता है स्टेट कित्तूर, 1824. Then we had Kutlehar. Kutlehar was annexed in 25. ठीक है, 34 में शायद कोडागू था. ठीक है, कोडागू वॉज एनेक्स्ड इन 1834. देन वी हैड कांगड़ा. कांगड़ा वॉज एनेक्स्ड इन द ईयर 1846. ठीक है. देन कांगड़ा के बाद वी हैड सतारा.
सतारा महाराष्ट्र में आप देखेंगे, सतारा वॉज एनेक्स्ड इन 1848. ओके, उसके बाद हमारे पास आता है आफ्टर सतारा वी हैव जैतपुर. सतारा के बाद आता है हमारा जैतपुर. जैतपुर एनेक्स्ड हुआ था 1849 में. देन वी हैड संबलपुर. संबलपुर वॉज एनेक्स्ड इन द ईयर अगेन 1849. देन वी हैड भगत. भगत वॉज एनेक्स्ड इन द ईयर 1850. आप देखोगे ग्रेजुअली वी आर गोइंग टूवर्ड्स 1857 रिवोल्ट. ठीक है. देन वी हैड उदयपुर. उदयपुर वॉज एनेक्स्ड इन 1852. देन झांसी. Jhansi was annexed in the year 1853, and then we have Nagpur, which was annexed in 1854. Okay, then after 2 years we saw the revolt of 1857. Now the final moment came when Awadh was annexed. Final moment तब आया जब अवध को भी annex कर लिया गया, but Awadh was not annexed under doctrine of lapse policy. ठीक है, इट वॉज एनेक्स्ड बाय गिविंग द रीजन ऑफ मिसमैनेजमेंट. दैट इज वाई वी आर नॉट कवरिंग इट ओवर हियर. अवध का तो बहुत बेसिक रीजन था, उन्होंने अवध को गलत तरीके से अनेक्स किया था, ये कहकर किया था कि यहाँ पर मैनेजमेंट अच्छी नहीं हो रही है, तो इसको ब्रिटिशर्स के अधीन रहना चाहिए. द रूलर हियर इज करप्ट. ओके, द नवाब ऑफ अवध इज करप्ट. दैट इज वाई वी आर हैंडलिंग, वी आर ग्रैबिंग इट. हम इसको ग्रैब कर रहे हैं. Point clear? And it was annexed in 1856, not 1852. 1856 में annex किया गया था अवध को on 7th of February. 7th Feb 1856 अवध was annexed. Point clear हो गया सभी को? Now we have to study the Vernacular Press Act. ठीक है, this is again very important. यहाँ पर Lord Lytton आ जाते हैं. ठीक है, so over here he passed the Vernacular Press Act of 1878. वर्नैकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पास किया गया? लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में. एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट में क्या लिखा गया था? दैट दिस एक्ट ऑथोराइज्ड, राइट इट डाउन, द गवर्नमेंट. इस एक्ट ने ऑथोराइज किया गवर्नमेंट को टू कॉन्फिस्केट न्यूज़पेपर्स दैट प्रिंटेड seditious material. Now what is seditious material? Sedition का मतलब क्या होता है? Any act which tries to incite the public against the government. आप कोई भी ऐसा कार्य करो, कोई ऐसी स्पीच दो, कोई ऐसा आर्टिकल लिखो जो आपको एंटी गवर्नमेंट बना दे, यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा कर दे, विद्रोह पे आ जाओ आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो सिडिशन होता है. दैट इज नोन एज सिडिशन. इफ एनी स्पीच, एनी आर्टिकल, एनी राइटिंग, एनी एक्ट incites the public to stand against the government, that is sedition. So Vernacular Press Act of 1878 passed by Lord Lytton, it authorized the government to confiscate, to capture the newspapers that printed seditious materials. Point clear हो रहा है? He also passed the Arms Act. इन्होंने ही Arms Act of 1878 भी पास किया था. ठीक है, what was this Arms Act of 1878? It prohibited the Indians from carrying weapons, any kind of weapons. ठीक है, विदाउट लाइसेंस. अगर लाइसेंस नहीं है और आपके पास वेपन है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको जेल में भेजा जाएगा. ठीक है, if you are carrying any weapon without license, then you will be punished. English men, they were excluded from this act. That is why people protested against it, because it prohibited only Indians, not the Britishers. इस आर्म्स एक्ट ने सिर्फ इंडियंस को ही प्रोहिबिट किया था, ब्रिटिशर्स को नहीं, यूरोपियंस को नहीं. That is why people were against this act. Point clear हो गया यहाँ तक सभी को? Please let me know if this is clear. So now see, I have explained 3 very important topics to you, because these topics have been repeatedly asked in prelims. ये जो topics है ना, बार बार prelims में पूछे जाते हैं, तो that is why we discussed it. Now we are going to start with the most important viceroys of India, and this is important from prelims perspective. Prelims में हमेशा every year there are 2 to 3 questions, that mean 4 to 6 marks from viceroys topic only. 4 से 6 नंबर जो हैं वो वाइसरॉय के टॉपिक से ही पूछे जाते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वाइसरॉय दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड गवर्नर जनरल. ओके, व्हाट इज दिस वाइसरॉय?
What is the difference between Governor General and Viceroy? We discussed this in the last class. Let me know in the comment section. कल की क्लास में मॉर्निंग में डिस्कस किया था. Viceroy और Governor General में डिफरेंस क्या है? What is the difference? So the major difference between Governor General and Viceroy is, see, powers are same, but the difference is Governor General used to report to Board of Control in the English East India Company. Viceroy used to report directly to the Queen. समझ आ रहा है डिफरेंस? नाउ अंडरस्टूड द डिफरेंस और नॉट? गवर्नर जनरल क्या करते थे? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इंडिया के अफेयर्स रिपोर्ट करते थे. बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्वीन को बताता था. बट नाउ वाइसरॉयज, दे, बिकॉज देयर वाज नो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर 1857 रिवोल्ट. कल रात को पढ़ा था हमने ये कि 1857 के रिवोल्ट के बाद वाइसरॉय की, गवर्नर जनरल की पोजीशन ही हटा दी. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ 1858 रिमूव्ड दी पोजीशंस ऑफ the Governor General. So now Viceroys were created. They had the same power as that of Governor General, but they did reporting of Indian affairs directly to the Queen. ठीक है, बीच में कोई मिडल मैन नहीं था, डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती थी. पॉइंट क्लियर? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. प्लीज रिमेंबर दिस. अगर आपसे पूछ लिया गया इंटरव्यू में, तो अगर आप बोल दोगे नहीं कोई डिफरेंस नहीं है, तो वहीं पर ही बाय बाय हो जाएगी. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दी स्मॉल डिटेल्स इन हिस्ट्री. यू हैव टू रिमेंबर देम. एंड हाउ कैन यू रिमेंबर देम? इफ यू आर स्टडिंग हिस्ट्री विद एन ओपन माइंड, नॉट क्रैमिंग हिस्ट्री. अगर रट्टे लगा रहे हो तो छोटी छोटी डिटेल सारी मिस कर दोगे. पर अगर सब ओपन माइंडेडली एनालिटिकली पढ़ रहे हो, स्टोरी फॉर्मेट में एनसीईआरटीज को पढ़ रहे हो, कभी नहीं भूलोगे. ठीक है. So the first viceroy we had the Lord Canning, 1858 to 1862. This is the first, you can say, viceroy. When we talk about this first viceroy, Charles Canning, first Earl Canning, was born on 14th of December 1812 at Brompton near London, and he went on to become the first viceroy and Governor General of India, because he was the Governor General during the time period of 1858. But when 1858 administrative reforms were passed, the Governor General position was eliminated, so his position got transferred from Governor General to Viceroy. तो ये Governor General भी थे, Viceroy भी थे. ठीक है. So now let's move forward. 1857 revolt happened during Canning's rule in India, and during the rebellion at Awadh, he forfeited the lands of province, angering many British people at that time. इन्होंने क्या किया? जब अवध में rebellion हो रहे थे, when in Awadh the protests were going on, Canning, what he did to pacify the people, he gave the lands of the provinces back to them, because of which many British journals, they were unhappy. इन्होंने क्या किया था? अवध में प्रोटेस्ट को काम डाउन करने के लिए काफ़ी ज़मीनें जो हैं वो किसको दे दी? वापस लोगों को देनी शुरू कर दी कि भाई शांत हो जाओ, प्रोटेस्ट मत करो, लो अपनी ज़मीनें लो, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को काफ़ी गुस्सा आया. एंड आफ्टर द रेबिलियन द रेन ऑफ ब्रिटिश इंडिया पास्ड ऑन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, व्हेन इट वाज पास्ड, दिस एक्टिविटी ऑफ लॉर्ड कैनिंग टू forfeit the lands of province, to give away the lands of the province, this activity was liked and admired by the queen. It showed that Lord Canning knew how to manage. इससे पता चला कि लॉर्ड कैनिंग को पता था कि मैनेज कैसे करना है. That is why he was made the first viceroy and governor general of India. Point is clear? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है. एंड एज वाइसरॉय ही अबॉलिश्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड प्रोक्लेम्ड दैट देयर वुड बी नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टेरिटरीज, बिकॉज द मेन रीजन ऑफ प्रोटेस्ट वॉज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ओनली. जो मेन एक्यूमुलेटेड रीजन था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही था, जिस वजह से लॉर्ड कैनिंग ने आश्वासन दिया कि देखो, एक लॉलीपॉप दी. ठीक है, वी ऑल नो दैट ब्रिटिशर्स आर वेरी ग्रेट इन गिविंग लॉलीपॉप्स. So what he did, he abolished the doctrine of lapse by saying that, okay, I know doctrine of lapse is the main reason why you guys are angry, so I am eliminating this doctrine of lapse. Now we are not going to snatch away their territories if you do not have a son. अगर biological बेटा नहीं है तो आपकी territories हम नहीं छीनेंगे. Don't worry. And Viceroy's council was now the Imperial Legislative Council. ठीक है. अच्छा, ये जो हम term पढ़ रहे हैं ना, Viceroy, this term that we are studying, Viceroy, what does it mean? इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? What does this term means, Viceroy? Let me know in the comment section. देखो, Viceroy में जो Vice word है ना, इसका मतलब होता है second. Roy means representative. Point clear हो रहा है सभी को? फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गवर्नर जनरल. गवर्नर जनरल जो था वो पहला रिप्रेजेंटेटिव था.
Now Governor General's position has been eliminated. So the second representative is Viceroy, second representative. This is very important for your mains answer writing. ये introduction में आप लिखोगे तो काफ़ी impact पड़ेगा, ठीक है. If you'll write this in your introduction, it will have a very good impact. Viceroy means second representative, ठीक है. Let's move forward. So over here you can see, so the Viceroy, he abolished the doctrine of lapse, and he also proclaimed that there would be no further extension to calm down the Indians, because just now the revolt had taken place. Now during his tenure, the Indian Councils Act were passed. What were these Indian Councils Act? These were again lollipop. ये क्या थे? ये lollipop ही तो थे, ठीक है. Executive and legislative councils were framed, and in the legislative councils 3 Indians were given representation. Legislative council में क्या किया गया? 3 Indians को representation दिया गया. Who were these 3 Indians? These were the puppets in the hands of Britishers. First we had Sir Dinkar Rao. पहले हमारे थे दिनकर राव जी, ठीक है. Then we had the Maharaja of Patiala. फिर हमारे पास महाराजा ऑफ पटियाला थे नरेंद्र सिंह, ठीक है. We had नरेंद्र सिंह. Point clear? Then we have Raja of Banaras, राजा सर देव नारायण, ठीक है. राजा सर देव नारायण. अब आप इधर देख रहे हो, इधर आप देख रहे हो सर टर्म लगाया जा रहा है. कैन यू सी दैट दे आर गिविंग द टाइटल ऑफ सर, ठीक है. सर दिनकर राव, राजा नरेंद्र सिंह, राजा सर देव नारायण. व्हाट, व्हाई? बिकॉज दीज 3 वर द पीपल who supported Britishers during the revolt of 1857. ये तीनों को क्यों रिप्रेजेंटेशन दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में? क्योंकि तीनों ने ही ब्रिटिशर्स की मदद की थी 1857 के रिवोल्ट के दौरान, ठीक है. एंड रेस्ट ऑफ द इंडियंस, दे थॉट वाओ, दे आर गिविंग इंडियंस द रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. दैट इज सच अ ग्रेट स्टेप बाय ब्रिटिशर्स. नाउ दे आर थिंकिंग फॉर अस. इंडियंस को पागल बनाने लगे, लॉलीपॉप मिल गई, ठीक है. So now Indians were thinking, finally we are getting representation, but they were not aware that these were puppets in the hand of Britishers. ये लोग क्या करते थे? इनको राइट नहीं था वोट करने का. They had no right to discuss important matters in the parliament. They had no right to vote on important matters in the parliament. What they were doing? They were coming into the legislative assembly, eating their chai, samosa and going back. Legislative assembly में आते थे, नाश्ता करते थे, चले जाते थे, ठीक है. तो ये जो पपेटगिरी हो रही थी ना यहाँ पर, इस पपेटरी को कोई पहचान नहीं पा रहा था. बाद में दादाभाई नारोजी एंड द अदर नेशनलिस्ट लीडर्स, दे स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस पपेटरी दैट वाज गोइंग ऑन इन इंडिया. इस कठपुतली के डांस को हमारे मॉडरेट लीडर्स ने पहचाना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पहचाना, ठीक है. क्लियर हो रही है बात सभी को यहाँ तक? नाउ वी हैव लॉर्ड एल्गिन. अब हमारे पास आते हैं लॉर्ड एल्गिन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लॉर्ड एल्गिन, he is known to have abandoned the pomp of the earlier governor generals. What is pomp? Pomp का मतलब क्या है? शोबाजी. Pomp here means show off, ठीक है, शोबाजी. He avoided the pomp, the show off. He did not show off. He was on a big position in India, but he did not show off. मतलब घमंड नहीं है, हम बड़ी पोजीशन बैठे हैं, घमंड नहीं है. He used to travel by train. ट्रेन से ट्रैवल किया करते थे, ठीक है. एंड द वहाबीज, विच वॉज अ ग्रुप ऑफ वेरी वायलेंट एंड फैनेटिकल मोहम्मदन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, दे वर सप्रेस ड्यूरिंग दिस टाइम. वहाबी मूवमेंट चला था मोहम्मदन्स का, ठीक है, जिसको आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे. रिफॉर्मिस्ट रिवाइवलिस्ट क्लास 7 से 8 बजे की आज क्लास है, ठीक है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं. सो ही सप्रेस दैट मूवमेंट एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय सर विलियम डेनिजन. इनके बाद आए सर विलियम डेनिजन, ठीक है. Now, Sir William Denizen, the governor of Madras, he became acting governor general under the Act of 1861. Now, when we talk about Lord Elgin, his time period was not very, you can say, elaborate. इनका time period ज़्यादा elaborate नहीं था, बहुत short time period के लिए आए थे. Because management, he was a very peaceful person. So management इनकी बस की बात नहीं थी, ठीक है. Because to manage India, the Britishers had to be violent. इंडिया को मैनेज करने के लिए उस वक्त ब्रिटिशर्स में क्या क्वालिटी देखी जाती थी कि जितना ज़्यादा क्रूअल और वायलेंट हो सके उतना होना चाहिए, जितना ज़्यादा शातिर दिमाग और शकुनी मामा टाइप होना चाहिए, ठीक है. सो दैट इज़ वाई ही वॉज नॉट लाइक शकुनी मामा, ठीक है, ऑफ महाभारत. दैट इज़ वाई हिज टाइम पीरियड वॉज वेरी स्मॉल, काफ़ी छोटा टाइम पीरियड था. जिसके बाद आते हैं लॉर्ड लॉरेंस. नाउ वी हैव लॉर्ड लॉरेंस. नाउ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इवेंट्स दैट टुक प्लेस अंडर लॉर्ड लॉरेंस. इनके अंडर क्या क्या पॉइंट्स आए? अब ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वाइसरॉयज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. So first of all, the telegraphic communication was opened with Europe. Now directly the British rulers in India could
सेंड टेलीग्राम्स एंड टेलीग्राफ्स टू यूरोप। अब बहुत इजीली कम्युनिकेशन बैठ पा रहा था यूरोपियंस एंड इंडियंस के बीच में। हाई कोर्ट्स वर established in Calcutta, Bombay, Madras in 1865. He also expanded the canal works and railways, and he was the same person under whose ruling period the Bhutan war also took place. तो उन्होंने canal works भी कराए। बेसिकली आप कह सकते हो infrastructure, irrigational infrastructure was and transportational infrastructure was established by Lord Lawrence. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। नाउ कम्स लॉर्ड मेयो। इनके ऊपर क्वेश्चन आया है 2015 प्रीलिम्स में, ठीक है, उसके बाद रिपीट नहीं हुआ है, आई गेस फिर लास्ट 2017 में आया था, ठीक है, देन उसके बाद रिपीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, सो नाउ दे कैन रिपीट द क्वेश्चन। अब ये रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट लॉर्ड मेयो, ही इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आप लोगों को पता है ना कि जो भी अमाउंट सेंटर से रिलीज होता है वो स्टेट्स में बंटता है। whatever amount is released from the center, it is dispersed between center and state. You know that finance commission आपने पढ़ा होगा, 15th finance commission, how the money is distributed among the states on what parameters, ठीक है। So financial distribution, this concept was started by Lord Mayo. ये जो concept है ना फाइनेंस कमीशन का, सेंसस का, वो किसने स्टैब्लिश किया है? लॉर्ड मेयो ने स्टैब्लिश किया है। आप देख सकते हो कपड़े कैसे होते थे इन लोगों के, ठीक है, पूरा शोबाजी होती थी, हर तरीके से दिखाना है कि हम कुछ आपसे सुपीरियर हैं, ठीक है। नाउ यू कैन से ओवर हियर दैट द फर्स्ट सेंसस टुक प्लेस अंडर हिज रिजीम इन 1872। व्हाट इज सेंसस? सेंसस क्या होता है? सेंसस मीन्स द पॉपुलेशन काउंट, ठीक है। सेंसस मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन काउंट होता है, ठीक है। So here the Mayo College for the Royal Elite was also set up by Lord Mayo, and it was set up only for the royal elite. That means the children of the elites, the British officers, the British officers sitting on the high positions, उन्हीं के बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे। And Lord Mayo was the only Governor General who was killed in India, जिनको इंडिया में शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर के पास मार गिराया था। He is also responsible for establishment of Statistical Survey of India. NSSO के रिपोर्ट्स आप पढ़ते होगे ज़रूर, 2017 में इसी रिपोर्ट से 2 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट्स और ये सारी बॉडीज़ जो थी वो किसके दिमाग की उपज थी? लॉर्ड मेयो की। He was the person responsible for establishing the Statistical Survey of India, ठीक है। Then we have Lord Northbrook. So Lord Northbrook, his full name is Thomas George Baring. And he was a British liberal statesman. Liberal statesman है ये। He was appointed the viceroy from 1870 to 76. Now what are the contributions of this particular viceroy? This is important for prelims. आपको contributions पढ़ने हैं। So his major accomplishments came as an energetic reformer who was dedicated to upgrade quality of government in British Raj. I told you he was a liberal statesman. Liberal statesman means that his focus was not only on expansion of British Empire. No, क्योंकि अगर आपका फोकस सिर्फ एक्सपेंशन पे है तो आप कोई भी तरीका यूज करोगे एक्सपेंशन करने के लिए। इफ योर फोकस इज ओनली ऑन एक्सपेंशन, यू कैन बिकम क्रूअल ऑल्सो, यू कैन बिकम वायलेंट ऑल्सो टू एक्सपैंड योर टेरिटरी। बट ही वॉज लिबरल पर्सन, दैट मीन्स ही फोकस्ड मोर ऑन गवर्नेंस। इन्होंने फोकस सबसे ज़्यादा किया गवर्नेंस पर, द वे यू गवर्न द पीपल, जिस तरीके से आप लोगों को गवर्न करते हो, मैनेज करते हो, मैनेजमेंट पे इनका फोकस था। बिकॉज इफ योर मैनेजमेंट इज गुड देयर इज नो नीड टू बी वायलेंट। अगर आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग है ना तो आपको वायलेंट होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से लोग आपकी बात मानेंगे। वेरी इजीली पीपल विल एक्सेप्ट योर पॉलिसीज इफ योर मैनेजमेंट इज गुड, ओके। सो ही बिगैन लार्ज स्केल फेमाइन रिलीफ, reduced taxes also, overcame bureaucratic obstacles, corruption also, ठीक है। and he served as first lord of admiralty between 1880 to 1885। यहाँ तक आपको ये बात समझ आ रही है कि ये इनका अप्रोच जो था इंडिया में रूल करने का वो काफ़ी लिबरल था, जो अभी तक किसी का नहीं रहा है, ठीक है। दैट इज़ वाई टाइम पीरियड इज शॉर्ट, क्योंकि ऐसे लोगों को ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकने देती थी। द पीपल हु वर थिंकिंग अबाउट इंडियंस, दे वर नॉट अलाउड टू स्टे इन द गवर्नमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। समझ आ रही है ये बात? दिमाग समझ आ रहा है ब्रिटिशर्स का कि नहीं आ रहा? ईयर देखो, टाइम पीरियड सिर्फ 4 साल। अभी हमने लॉर्ड एल्गिन की बात की थी, लॉर्ड एल्गिन ओनली 3 years 5 years, 1 साल के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इनका टाइम पीरियड शॉर्ट है। वाई? बिकॉज दे वर थिंकिंग अबाउट द इंडियंस, क्योंकि ये इंडियंस के बारे में सोच रहे थे। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड आर्य समाज मैरिज, जो आज के टाइम पे आप आर्य समाज मैरिज देखते हो ना, ही इंट्रोड्यूस दैट। सिविल मैरिज, यूनिवर्सल मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1872। इंटरकास्ट मैरिज वॉज अलाउड,
सम ऑफ द इंडियंस वर ऑल्सो अगेंस्ट हिम, कुछ इंडियंस भी इनको पसंद नहीं करते थे, बिकॉज इंटरकास्ट मैरिज टिल नाउ इज यू नो सच अ बिग थिंग इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? अब बात करते हैं लॉर्ड लाइटन की। सो इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अभी स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पढ़ा था 1878। इट वॉज पास्ड बाय लॉर्ड लिटन ओनली। आर्म्स एक्ट वी ऑल्सो स्टडीड दैट इन द इनिशियल स्लाइड्स, हमने स्टार्टिंग में ही जस्ट पढ़ा। इन द स्टार्टिंग वी हैव स्टडीड द आर्म्स एक्ट, इट वॉज ऑल्सो पास्ड बाय लॉर्ड लिटन एंड ही हैड अ नेशनलिस्ट व्यू। नाउ व्हाट ही सेड that when we increase the rate of taxes the purchasing power comes down। जब टैक्स हम इंक्रीज कर देते हैं परचेजिंग पावर इंसान की कम हो जाती है। दैट इज नॉर्मल, यू अंडरस्टैंड दैट राइट? व्हेन वी इंक्रीज द टैक्स, जब टैक्स मार्केट में इंक्रीज हो जाते हैं, आपकी खरीदने की क्षमता जो है चीज़ों को वो कम हो जाती है ना। तो ही हैड अ नेशनलिस्ट व्यू, ही ऑल्सो हैड दिस सेम ओपिनियन, इनका भी सेम ओपिनियन था दैट इफ वी आर इंक्रीजिंग द टैक्सेशन that means people are facing it very hard to purchase things। so what he did, he focused on reducing the taxes। इन्होंने फोकस किया कि मुझे टैक्सेस रिड्यूस करना चाहिए। टाइम पीरियड देख लो कितना है, समझ आ रही है बात? नेशनलिस्ट व्यू है तो टाइम पीरियड देख रहे हो, जस्ट लुक एट द टाइम पीरियड बिकॉज ऑफ नेशनलिस्ट व्यू। ओके, so when we talk about the nationalist view, he had the nationalist view। now government का व्यू क्या था? his view was also contradicted by government। इनका जो व्यू था वो गवर्नमेंट उसको कॉन्ट्रोडिक्ट करती थी। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट यूज टू से दैट ड्राउट एंड फेमाइन दीज आर नेचुरल थिंग्स, वी शुड नॉट रिड्यूस टैक्सेस बिकॉज ऑफ दीज नेचुरल डिजास्टर्स। दीज डिजास्टर्स आर नॉट अंडर आर कंट्रोल। ये डिजास्टर्स हमारे कंट्रोल में थोड़ी है जो हम टैक्स रिड्यूस कर दें। वी हैव टू लेवी टैक्सेस, ठीक है? ये तो नेचुरल चीज़ है, ये तो होती आती है जाती है। ड्राउट कम्स गोज, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, सो वी शुड लेवी टैक्सेस। ठीक है, दिस वॉज द गवर्नमेंट व्यू। ऑब्वियसली आप तुम किसी कंट्री पे राज करोगे, रूल करोगे, तुम्हारा यही व्यू होगा। ठीक है, सो नाउ व्हाट हैपेंड दैट ही अबॉलिश टैक्स ऑन कॉटन फॉर द ब्रिटिश ट्रेडर्स। इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश ट्रेडर्स का साथ दिया, बिकॉज ऑब्वियसली क्वीन वॉज सिटिंग ऑन हिज हेड। क्वीन जो थी वो इनके सर पे बैठी हुई थी, तो अगर ये कुछ अपने मन का करने लगेंगे, क्वीन विल पुल द स्ट्रिंग्स इफ यू वुड हेल्प इंडियंस। सो ही अबॉलिश द टैक्सेस ऑन कॉटन फॉर द ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड under his ruling period only the maximum age of giving the civil service exam was lowered from 21 to 19। देखो अभी क्या हो रहा है, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द मैक्सिमम एज, राइट। हम कह रहे हैं 32 से 35 कर दो, कभी बोलेंगे 40 कर दो, कभी बोलेंगे 58 कर दो, 1 साल रूल करो और उसके बाद पेंशन लेके बैठ जाओ घर पे। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितना हो सके उतना रिड्यूस करने की कोशिश की, सो दैट नॉट मेनी इंडियंस कैन पार्टिसिपेट। जब तक होश संभालेगा बच्चा तब तक सिविल सर्विस की एज ही निकल जाएगी। ठीक है, सो ही रिड्यूस्ड द एज ऑफ सिविल सर्विसेज इंटेंशनली सो दैट द इंडियंस विल फाइंड इट वेरी हार्ड टू सिट फॉर द एग्जाम। ठीक है, पॉइंट क्लियर और नॉट? प्लीज लेट मी नो इफ द पॉइंट इज क्लियर। पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव लॉर्ड रिपॉन। लॉर्ड रिपॉन इज रिलेटेड टू a very important act, that is Arms and Vernacular Press Act। he repealed these acts। इन्होंने आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील मीन्स कैंसिल कर दिया। ही वॉज द मोस्ट लव्ड गवर्नर जनरल, ये काफ़ी पसंद किए जाते थे। वाई? बिकॉज ही इंट्रोड्यूस्ड द इल्बर्ट बिल। व्हाट इज इल्बर्ट बिल? इल्बर्ट बिल सेड नाउ द इंडियन जज कैन नॉट ट्राई इंग्लिश जज। ठीक है, इंडियन जज जो है वो इंग्लिश जज को, इंडियन लोग जो हैं वो इंग्लिश जज को ट्राई नहीं करेंगे उनके। आई विल एक्सप्लेन यू इन फर्दर। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज द कंट्रोवर्सी दैट सेड दैट द यूरोपियंस कुड नेवर बी ट्राइड इन द कोर्ट। यूरोपियंस जो है वो कुछ भी गलती कर लें, ठीक है, हम उनको कभी भी ट्राई नहीं करेंगे। ट्राई मीन्स दैट वी विल नॉट पनिश देम, वी विल नॉट टेक अप द केसेस इन द कोर्ट अगेंस्ट द यूरोपियंस। येस, इफ देयर इज एनी केस अगेंस्ट द इंडियंस वी विल टेक अप दैट केस। ठीक है, दैट यूज्ड टू बी द रिजीम। बट इन द इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपॉन सेड दैट इज इनजस्टिस, ये तो इनजस्टिस है। ठीक है, इफ द यूरोपियन हैज ऑल्सो कमिटेड अ क्राइम द केस शुड बी फाइल्ड, राइट, he should be presented in the court। ये तो partiality हो जाएगी, or else it will result in partiality if you are just criminalizing the acts of Indians and letting the Europeans roam free on the roads, that is partiality। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्शियल क्यों था? क्योंकि लॉर्ड रिपॉन का मानना ये था चाहे यूरोपियन हो चाहे इंडियन हो, अगर कोई क्राइम किया है तो इनको कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा। दे हैव टू कम टू द कोर्ट, दे हैव टू फेस द ट्रायल इफ दे हैव कमिटेड एनी काइंड ऑफ क्राइम।
ठीक है. एंड दिस बिल डिड नॉट वेंट वेल विद द अदर यूरोपियंस, बाकी ऑफिसर्स को नहीं अच्छा लगा. And he is also responsible for setting up local self-government. That is why he is known as father of Indian local self-government. Lord Ripon को हम क्या बोलते हैं? He is also known as the father of Indian local self-government because he established local government at the root level. But एक झांसा इन्होंने ये दिया, इन्होंने कहा कि मैं local government establish करूँगा, but not at the rural level, at the urban level. The local government was established at the urban level. ठीक है. He also introduced new universities, Punjab University in 1884 and Allahabad University in 1887. क्या तक पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? तो जल्दी से बताएं. ओके, पॉइंट क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ कमिंग ऑन, लॉर्ड रिपॉन हमारा तैयार हो गया. अब बात करते हैं द नेक्स्ट वाइस रॉय, दैट इज लॉर्ड लाइटन. अभी हमने पढ़ा लॉर्ड लाइटन. व्हेन वी टॉक अबाउट हिम, ही इज कंसिडर्ड एज द पर्सन हु रिड्यूस्ड द एज ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज. इन्होंने क्या किया था? इंडियन सिविल सर्विसेज की एज रिड्यूस की थी. सो मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ हिज टाइम इज रिड्यूसिंग द एज ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज. दैट यू हैव टू रिमेंबर. अगर आपको इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम देना है तो क्या आप इंडिया में दे सकते थे या बाहर जाना पड़ता था? लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. In the pre-independent India, could you give the Indian civil service exam in India? No, you had to go to London. That too at the age of 19, maximum 19 एज के ऊपर एज में आपको बाहर जाना पड़ता था. ठीक है. Now coming towards Lord Dufferin. Lord Dufferin, he served as the Governor General of India and Viceroy from 1884 to 1888. And during his time period, the third Burmese war led to the annexation of whole of Burma and Burmese ruler was exiled to India. Exile का मतलब क्या होता है? वनवास. ठीक है. Exile means when you are sent out of your state forever. अब आप आपके स्टेट में नहीं रह सकते. You are not allowed to enter your state for a certain time period. And during his time period only, Indian National Congress was also formed. So A.O. Hume, Alan Octavian Hume, was the retired British civil servant who went to Lord Dufferin to take permission for establishment of Indian National Congress. Now A.O. Hume was the friend of Dadabhai Naoroji, and on the behalf of Dadabhai Naoroji he went to Lord Dufferin and he explained to Lord Dufferin that if we do not give any chance of political representation to the Indians, then they will indulge into another revolt just like 1857. अगर इन्होंने समझाया लॉर्ड डफरिन को, A.O. ह्यूम ने, कि अगर हमने अभी इन लोगों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, इनको मौका नहीं दिया अपने आप को पॉलिटिकली संगठित करने का, तो हो सकता है 1857 के रिवोल्ट की तरह एक और रिवोल्ट यहाँ पर शुरू हो जाए. सो लॉर्ड डफरिन, he took the Indians very lightly. He said, okay, I'm giving them the chance to form Indian National Congress. What more they can do? क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेंगे. ठीक है. So under his time period only, 1885, Indian National Congress was established. Point clear हो गया. So he is also known as a person who took Indians very lightly and at the end they had to pay the price for it. ठीक है. बाद में इनको प्राइस तो देना ही पड़ा, पे करना ही पड़ा. ठीक है. अब बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर इज लॉर्ड एल्गिन टू. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लॉर्ड एल्गिन टू, 5 years तक ये रूल कर पाए. He was killed by the Chapekar brothers, that is Ramakrishna and Damodar, and it was the first political murder in India. इनके टाइम पीरियड में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ. In his time period, he was assassinated and not much of the events took place in his time period. एक famine commission establish की गई थी, उससे ज़्यादा कुछ इन्होंने contribution अपना दिया नहीं. But the major person after him is Lord Curzon. लॉर्ड कर्जन का नाम तो आपने सुना होगा. ही इज़ कंसिडर्ड एज दी वेरी रुथलेस, बहुत ही ज़्यादा रुथलेस पर्सन माना जाता है. वेरी रुथलेस एक्सपेंशनिस्ट, यानी कि टू एक्सपैंड हिज टेरिटरीज इन इंडिया ही कुड गो अप टू एनी एक्सटेंट. किसी भी हद तक जा सकता है ये इंसान. He was a true successor of Lord Dalhousie and he was a very great imperialist and authoritarian in temperament. Very authoritarian, very dominant, बहुत ही ज़्यादा dominant थे ये. Through the Calcutta Corporation Act 1899, he reduced number of elected legislatures. Why? So that Indians will never think about self-governance. Indian की representation ही कम कर दो, self-governance की क्या सोचेंगे? If we reduce the representation of Indians, how will they think about self-government? Right? And he described the Bengalis as cowards.
ये कहा करते थे बंगालीज जो हैं वो डरपोक हैं, सिर्फ बात करते हैं, करना कुछ नहीं आता, ठीक है। एंड ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट ही कमिटेड। ये सोच रहे थे कि हमें बांट देंगे, ही थॉट दैट ही विल सप्रेस अस, बट ही इंसाइटेड और इग्नाइटेड द नेशनलिस्टिक फीलिंग विद इन आवर हार्ट्स। इनके इस करतूत की वजह से हमारे अंदर जो नेशनलिस्टिक फीलिंग है वो और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट ही कमिटेड इन दिस टाइम पीरियड। पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? वेरी वेरी रूड एंड वेरी यू कैन से रुथलेस रूलर, बहुत ही रुथलेस रूलर थे। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर की बात आती है, वाइसरॉय की बात आती है, लॉर्ड माउंटबैटन। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट हिम? जल्दी से बताएं। लॉर्ड माउंटबैटन, ही वॉज द पर्सन who was present in India during the time of partition, during the time of independence, ठीक है। And he also appointed 2 boundary commissions under Ratcliffe, Sir Cyril Ratcliffe, for partitioning Bengal and Punjab. बंगाल और पंजाब को पार्टीशन करने के लिए इन्होंने रैटक्लिफ कमिटी तैयार की थी। रैटक्लिफ लाइन के बारे में आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द रैटक्लिफ लाइन ऑल्सो, राइट। सो ही इंट्रोड्यूस्ड द माउंटबैटन प्लान, इन्होंने माउंटबैटन प्लान इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, थ्रू विच वी ऑल्सो रिसीव्ड वी ऑल्सो अचीव द पार्टीशन, हमने पार्टीशन भी अचीव किया था इसी प्लान के तहत। नाउ वी हैव स्टडीड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे वाइसरॉयज हैं, हमने उनके बारे में तो पढ़ लिया, वी हैव स्टडीड अबाउट देम। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रीलिम्स का टेस्ट। अब हमने जो पढ़ा है उसको टेस्ट कर लेते हैं, वॉट एवर वी हैव स्टडीड लेट अस टेस्ट इट। एवरीबडी इज रेडी? सभी बच्चे रेडी है टेस्ट के लिए? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए। कर्जन ब्रॉट इन द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट विच रिमूव्ड सोशल साइंस फ्रॉम करिकुलम ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डिड अवे विथ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, brought all the universities under the control of government, nationalized all higher education institutions in India. You have 15 seconds time to answer the question. आपके पास 15 सेकंड का टाइम है क्वेश्चन आंसर करने का, जल्दी से आंसर करें। Correct answer to this question is C. C means brought all the universities in India under control of government. That is why Indian Universities Act was passed. ठीक है, so he took a serious view of the fall in the standard of education, and to bring about a reform in education system, he brought all the universities under the control of British government. Okay, coming on to the next question. Ahmedabad mill strike 1918 led by Gandhiji was based on the issue of inhuman treatment of mill workers by management, objection of management on participation of workers in freedom struggle, plague bonus of previous year to workers, large scale layoffs of mill workers. You have 15 seconds time to mark your answer. 15 सेकंड का टाइम है, वेरी इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 7 seconds आर लेफ्ट, जल्दी से आंसर करो। करेक्ट आंसर इज सी। सी मीन्स प्लेग बोनस ऑफ प्रीवियस ईयर्स टू वर्कर्स। फाइनली 35% का डिमांड था, ठीक है, 35% इंक्रीमेंट चाहिए था बिकॉज ऑफ प्लेग द वर्कर्स वर ऑल्सो सफरिंग अ लॉट, सो दे वर डिमांडिंग 35%। वैसे तो 50% मांग रहे थे, बट फाइनली उन्हें 35% मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द टाइम गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया ही हैड ऑलरेडी फोर्स्ड ऑफ टेक्निक ऑफ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज ऑलरेडी established in India, first Swadeshi movement already been waged. This is a very easy question. 14 seconds time is left to answer this question. आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम बचा है, जल्दी आंसर करें। करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड? 1885। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, एंड येस सत्याग्रह वाज ऑलरेडी स्टार्टेड इन साउथ अफ्रीका, सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट बिकॉज गांधी जी केम इन 1914 एंड 15, ठीक है। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding subsidiary alliance. Abhi just in the beginning we have studied this. According to subsidiary alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces and were protected by the company. If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. Indian rulers regularly paid for subsidiary forces. None of the Indian territories were ceded by the Britishers. Which statement is correct? Very easy question.
13 seconds टाइम इज लेफ्ट टू आंसर द क्वेश्चन. 13 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट से आंसर कर दो. करेक्ट आंसर इज ए. ए करेक्ट आंसर है, बिकॉज इधर बोल रहे हैं द लास्ट स्टेटमेंट इज सेइंग इंडियन रूलर्स रेगुलरली पेड एंड नन ऑफ द इंडियन टेरिटरीज वर सीडेड. रॉन्ग. वी स्टडीड अबाउट सो मेनी टेरिटरीज विच वर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स, राइट, बिकॉज ऑफ सब्सिडरी अलायंस. अवध तो सबसे पहले गया था. ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर. ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द एम ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 was regulate manufacture, sale, possession and carrying of firearms, allow British subjects to be tried by Indian judges, deport foreigners suspected of propagating socialist and communist ideas, or abolish oppressive social practices among various religious groups. You have 10 seconds time to answer the question. 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट से आंसर कर दो. Okay, 2 seconds time. Correct answer to this question is, it is C. That is, deport the foreigners suspected of propagating socialist and communist ideas. It was aimed to stop communist movement in India. Okay. Coming on to the next question. Next question पे आते हैं. Consider the following statements about Champaran Satyagraha. Champaran Satyagraha of 1917 was first Satyagraha movement inspired by Gandhi in India. Gandhi was requested by Rajendra Prasad to look into the problems of indigo planters. Gandhiji's method of inquiry at Champaran was based on surveys by the volunteers. You have 10 seconds time to answer the question. It's a very easy question. 6 seconds time left. 6 सेकंड का टाइम बचा है. Correct answer to this question is B. That is, statement 1 and 3 are correct. He was not requested by Rajendra Prasad. He was requested by Rajkumar Shukla to visit Champaran and to study the people, to know about the disheartments and discontentment of the people. Okay. तो ये हो गया आपकी आज की क्लास. आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.